नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। Why am I getting a buzzing sound in my ear? ये buzzing sound क्यों आ रही है साहब? अब नहीं आ रही, ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, G20, India's presidency comes to an end, but the most successful G20 presidency ever. Exactly, sir. More accords have been signed in this G20 meeting than ever before, and the crown jewel, the crowning jewel of the entire thing is the new route, Yes. the sea and rail route from India to Iran to the United Arab Emirates to Saudi Arabia to Europe. Fantastic, absolutely fantastic, really and truly wonderful. Economic integration between India, West Asia, and Europe. Brilliant. That is what. Absolutely brilliant. And the corridor, as you said, India, Middle East, and Europe. And such a lot of things happening. The United Nations saying that India is going to be a $10 trillion economy very shortly. And they say that India is booming because after COVID, there's a less demand for commodities and more demand for service-related business. And India is ahead. In the terms of greatest services. Exporters of services. That's yes, right. Yes. Absolutely correct. So, absolutely correct. Such a this entire thing has been showcased so well. And the other thing which people are not talking about at the moment, this is cyclical. Sometimes there's a commodity cycle, sometimes there's a services cycle. Whereas India at the moment is the largest exporter of services in the world, but we are getting ready to export commodities as well. Yes. Because all manufacturing, which are shut down, shutters in China. At the moment Shanghai looks deserted. There are so many other places where thousands upon thousands of companies have down shutters, and there are lakhs upon lakhs of workers in China who are completely and totally unemployed. All that business is now shifting to India. It is shifting to India and shifting to Vietnam. These are the two countries which at the moment are in the forefront of receiving all the business which is shifted out of China. And one of the reasons is, Pradeep ji, China's main asset used to be the cheap labor that they could provide. Today, Chinese labor, by the way, is more expensive than Mexican labor. Yes. This always happens. क्या होता है? जब आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं. तो, agree, China is a communist country. They could have kept their people down, but for how long? And number three, point is, China does not manufacture anything for itself. It was manufacturing for the rest of the world, for the rest of the Western world. The whole of Europe is in a depression. The whole of America is also facing a depression. Nobody's buying. So whom do you manufacture for? As a result of which, all the manufacturing units are closing down. And one of the greatest things, about the G20, sir, it is China, appreciating the Delhi Declaration. Yes. Most important. that is, oh God. That is a game changer. China appreciating the Delhi Declaration is something out of the world. And probably I view it in two different ways. A, the increasing power of India, number one. Number two, the fact that Mr. Xi Jinping is under pressure within China itself. सुनने में यह आया है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में, वहाँ पर Xi Jinping से बहुत टफ सवाल पूछे गए, to which he had no answers. Let's be very clear, the entire Belt and Road Initiative, by the way, of China is now in a shambles. Italy is the latest country to have pulled out of the Silk Road project, and that includes so many other countries. Everybody is having second thoughts about China. Chinese money is like our own money lenders' money over here. Nobody wants to go to a Pathan. सीधी बात है, Pathan rate of interest आप कोई पे नहीं कर सकता. मतलब चाइना जो है वो आज की जो अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, वो पठान साहूकार जो होते हैं ना, वो है. तो उसके पास कोई जाना नहीं जाता आज की तारीख में. सीधी बात है. And the very declaration that no use of force on nuclear weapons for any attack on any country, so that has gone well across the globe. Sir, and what is more, even the Russians, even Vladimir Putin has appreciated that. India had to do a lot of backroom lobbying just to get their words Russia and Ukraine removed from that resolution. और सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, India actually got G20 to appreciate Turkey. तुर्की की appreciation बहुत बड़ी बात है. And finally, President Erdogan
and Prime Minister Modi had a one-to-one, which was fantastic. I hope they worked out the differences. The only bone of contention, by the way, remains Canada. Canada remains a bone of contention because Justin Trudeau is very highly dependent upon the very Khalistan sympathetic Sikh political party in Canada, whose 25 members are supporting Trudeau's party. If they withdraw support, Trudeau comes into a minority and his government falls. In fact, what the Canadians have done, I don't know whether you are aware of this, do you know any army personnel in India or any paramilitary forces personnel or J&K police? Canada has a blanket rule, no visa to Canada for them. Now that is bloody unfair, and I think the Canadians need to be taught a lesson. Let's be very clear. Definitely, sir. Something reciprocal will have to be done. But in the meantime, the whole world has appreciated Mr. Modi. Modi जी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, हर जगह पर हो रही है, हमारे विपक्ष को छोड़ के. लेकिन which is expected. विपक्ष का सर प्रियंका गांधी बोल रहे कि इनके G20, no, जी. इनके G20, that itself she disassociates herself from the Which is entire. terrible. Which is, I don't expect this from Rajiv Gandhi's daughter. Which is terrible. From Pandit Nehru's great granddaughter. इस किस्म की भाषा. This is not done. Absolutely not done. जहाँ पे देश का सवाल आता है ना प्रदीप जी, वहाँ पर हम सब लोग एक हैं. जैसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सुक्खू साहब, सुखविंदर सुक्खू, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, ये सब लोग गए. They went to the G20 summit dinner. So did M.K. Stalin. मतलब क्या है भाई, जहाँ तक देश का सवाल है हम सब लोग एक हैं. सीधा सी बात है. वो देखिए, this is fantastic. Yes. And so did the Jharkhand chief minister, which is absolutely fantastic. Now let's go and talk to Mr. Vinayak Ambekar of the BJP. Let's see what he has to say. Vinayak Ambekar साहब नमस्कार. नमस्ते. नमस्कार साहब, नमस्कार. बड़े दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है. हर हर महादेव, हर हर महादेव. हर हर महादेव. विनायक अंबेकर साहब, ये बताएं, मोदी जी की प्रशंसा हर जगह पर हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, यहाँ तक कि चाइना और रशिया दोनों ने मोदी जी की तारीफ करी है. अब हमारे विपक्ष के लोगों को क्या हो गया, कुछ लोगों को, सबको नहीं. अब आप देखिए, ममता बनर्जी हों, एम के स्टालिन साहब हों, नीतीश कुमार जी हों, झारखंड के मुख्यमंत्री हों, कांग्रेस के ही सुक्खू साहब हों, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सब लोग आए G20 के डिनर की बैठक में. और वहां पर भी इनको मतलब कुछ दाल में काला दिख रहा है, या इनको लग रहा था कि दाल अच्छी तरह नहीं पकी है, इनको खुद को बनानी चाहिए थी, शायद, मुझे मालूम नहीं है. मे बी दे शुड हैव ब्रॉट देयर ओन फूड अलोंग विद देम. कैसे देखते हैं अंबेकर साहब, बताइए. ये अपोजिशन की बात बाजू में रखेंगे तो अपने दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड थ्रू G20. एक तो ऐसा है कि पूरी जो मेहमान नवाजी हुई इंडिया की तरफ से, उसको बहुत अच्छी तरह से सराहा गया और नवाजा गया कि बाबा बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेहमान नवाजी की. जो बेसिक उद्दिष्ट था इंडिया का या मोदी जी का, वो ऐसा था कि इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर ये दुनिया के सामने लाना था उनको, और ये शोकेस करने के लिए इससे जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म और नहीं मिल सकता था. और इंडिया ने विगत 9 महीने में ये इतने अच्छी तरह से किया है कि कम से कम 600 मीटिंग, और वो भी 60 सिटीज़ में किए, अलग अलग सब्जेक्ट्स को टच किया. एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, सब जगह के सब्जेक्ट को उन्होंने टच किया है. और कल का जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, यहाँ जो वेस्टर्न एशिया और परसों का जो वेस्टर्न एशिया से यूरोप तक जाने वाला जो एक नया ट्रेड रूट है, जो चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को पूरी तरह से पूरा ये कंपटीशन देगा, वो एक मतलब बहुत अद्भुत चीज़ उन्होंने की है. और आगे चल के दुनिया के देशों के सामने भारत की एक प्रतिमा ऐसी निर्माण की कि कोई भी चीज़ हो तो हमारा भरोसेमंद पार्टनर, भरोसेमंद बड़ा भाई, जिसको मोदी जी विश्व गुरु कहते हैं, वो भारत है, ऐसा विश्वास उन्होंने दुनिया. और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है अंबेकर साहब, जो आपने बात करी, लिहाजा ठीक है, जब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्सपर्सन ने उनसे पूछा गया कि भाई क्या ये कंपटीशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, नेचुरली ही इज द फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन, ही कांट ऑब्वियसली से
दिस इज अ कंपटीशन, उनका भाई पैरेलली चलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, दिस एंटायर इनिशिएटिव कि इंडिया से ईरान सी रूट, चाबहार से लेकर के फिर ट्रेन रूट, और फिर वो ट्रेन रूट जाएगा पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की, सऊदी अरेबिया और सीधा यूरोप तक। मतलब इतना जबरदस्त ये पूरा का पूरा प्लान ड्रॉप कर लिया गया है। और तीसरी बात क्या है जो नितिन गडकरी साहब ने बोला कल, कि यहां पर जहां तक पैसों का सवाल है, देयर आर मोर देन 12 सॉवरेन फंड्स टुडे हु आर मोर देन विलिंग टू इन्वेस्ट एज मच मनी एज यू वांट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो कैन यू इमेजिन दिस अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन at a rate of interest of less than 1%. Sir, less than 1% rate of interest per year. Number one. Number two, सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन himself has endorsed this entire thing. He said the USA stands with you, or USA stands with you not only morally but even financially. Our financial support is for this project, which I think is the greatest achievement of Mr. Modi. Ambekar साहब. यस सर, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा मैं हमेशा बोलते आया हूँ, मोदी जी का जो विजन है, वो कोई भी चीज़ में यदि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने G20 शिखर परिषद के खर्चे किए, तो उसमें से वो एक मैसेज देना चाहते हैं, और उस मैसेज के बहाने से वो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसी होगी, इंडिया की वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर करके कैसी बड़प्पन होगा, ये सब देखते हैं। तो अपोजिशन पार्टी जो है वो छोटे मन के लोग हैं, उनको ये डिप्लोमेसी समझ में नहीं आएगी, तो उनके तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया के लिए, इंडिया के फ्यूचर जनरेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मोदी जी तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जनता ने ध्यान देना चाहिए। और मोदी जी ने ये बहुत बखूबी किया कि इतना अच्छी तरह से उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया, ये बहुत कमेंडेबल है। आने वाले पीढ़ियों के लिए इंडिया के बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम मोदी ने उठाया। अंबेडकर साहब, प्रियंका गांधी यानी G20 अप्रिशिएट सब लोग ने किया। इनफैक्ट दो ही विरोध है, पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि देखो कितना सऊदी अरेबिया से उन लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, हमको पीछे छोड़ दिया, चाइना हैज अ प्रॉब्लम। बट इन इंडिया पूरे दुनिया ने सारा प्रियंका गांधी के शी सेड इनका G20, इनका G20। क्या दिस काइंड ऑफ राहुल गांधी का कहना कि मैं भगवत गीता भी पढ़ता हूँ, उपनिषद भी पढ़ता हूँ, बीजेपी का जो रवैया, आरएसएस का जो रवैया है, इट इज टोटली हिंदुत्व से दूर है। तो हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन? फर्स्ट प्रियंका गांधी आइसोलेटिंग हरसेल्फ, अपने आप को G20 से दूर रखना, कहना कि हमारा इवेंट नहीं है, इनका इवेंट है। हाउ डू यू सी दैट अंबेडकर साहब? ये उनके छोटे सोच का सबूत है, तो उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो कि उनके पूरे फैमिली में इंडिया को अपने पैरों तले दबाया था, और उनको एक आदत हो गया था कि इंडिया में जो कुछ होगा वो उनके फैमिली के द्वारा होगा। उनके दादा, उनके पिता, उनके माँ, ये सब लोग जो है, इन्होंने ही इंडिया को कुछ दिया है, ऐसा उनका कहना था। तो अभी तो कोई ये बोल नहीं सकते ना, क्योंकि जब उनकी 10 साल यूपीए की सरकार की सत्ता थी, तो उन्होंने G20 में कितना हिस्सा लिया, G20 का कितनी अच्छी तरह से उन्होंने उपयोग किया, G20 के थ्रू इंडिया का प्रमोशन उन्होंने कितना किया, ये सब सवाल लोगों को पूछेंगे। तो ये सवाल लोगों ने पूछना नहीं चाहिए करके उनका G20, हमारा G20, अरे भले ये मोदी का G20 है, हम कबूल करने के लिए तैयार है, मगर तुम्हारी 10 साल जब सत्ता थी यूपीए की, तो तुम्हारे G20 में तुमने क्या किया, ये पूरे जनता हिसाब चाहती है, जनता पूछेंगी कल आपको। तो ये सब सवाल उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को। अंबेडकर साहब, द यूनाइटेड नेशंस, गीता गोपीनाथ ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027-2028। एप्रिसिएशन, मोदी साहब ने आगे जाके कहा वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन पर्टिकुलर फ्यूचर, एंड ही सेड द मून विजन। और जो चंद्रयान है, ये पूरे डाटा जो होगा पूरे मैनकाइंड के लिए, बिग विजन, बड़ा विजन, यूनिवर्स छोड़ के अर्थ के बारे में बोला, मैनकाइंड के लिए ये है। At the same time, if you see the Congress today officially saying that everything is back. मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि खाने की थाली में 24% इंक्रीज हो गया, 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जल जीवन में 13,000 करोड़ का स्कैम। हाउ डू यू सी दिस? एक तरफ जय जयकार हो रहा है,
और इनको यही है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, जल जीवन स्कैम हो गया, ये स्कैम हो गया. हाउ डू यू सी इट, अंबेडकर साहब? देखिए, जिस आदमी की खुद की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, खुद का उसका कर्तृत्व कुछ नहीं होता, वो दूसरे के कर्तृत्व से उसको बहुत जलन होती है. ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कांग्रेस पार्टी की आज की टेंडेंसी है. देखो, भारत में प्रश्न नहीं है, कुछ समस्याएं नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता. पूरी दुनिया के सामने मंदी, आर्थिक मंदी की समस्या है, पूरी दुनिया के सामने महंगाई की समस्या है. भारत में रिलेटिवली कम है क्योंकि मोदी जी ने उसका बंदोबस्त किया है. तो ये समस्याओं को बेदखल करना ऐसा भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का कोई एजेंडा नहीं है. मगर वन एट ए टाइम एक ही समस्या लेके बैठेंगे तो जिंदगी चलती नहीं है. उनको पूरा वर्ल्ड विजन है और वो वर्ल्ड विजन में उनको भारत की जो जी. हमारी संस्कृति क्या बोलती है, हमारी संस्कृति सुदामा के पोहे बोलती है. सुदामा के पोहे क्या है? सुदामा एक गरीब आदमी था. जब वो भगवान को मिलने गया तो अपने घर में जो मुट्ठी भर पोहे थे वो लेके गया. तो उससे भगवान नाराज हुए क्या? भगवान खुश हो गए क्योंकि वो पोहे नहीं थे, उसमें उसका प्यार था. तो जैसा इंडिया की जो भी कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी डेवलप हुई है, ये मोदी जी ने क्या किया? वैक्सीन मैत्री का कार्यक्रम किया. क्यों किया? क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में उनको मालूम था कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है. तो वो भी ह्यूमन है ना. जब हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि हमारे पास वैक्सीन है, यदि हम तैयार कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक पावर है, तो हम हमारे भाई लोगों को दो. ये उनकी जो वर्ल्ड विजन है वो वर्ल्ड पूरा सराहता है. तो एक पार्टी क्या बोलती है, मुझे नहीं लगता उसको कोई मायने रखना चाहिए. लेकिन वो जो अंबेडकर साहब, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है. द अफ्रीकन यूनियन हैज थैंक्ड मिस्टर मोदी बाय नेम. इनफैक्ट द अफ्रीकन यूनियन एम्बेसडर ओवर हियर, वो जब बोल रहे थे तो बड़े भावुक हो गए थे. इनफैक्ट उनकी आंखों में से आंसू भी आ गए थे कि जिस प्रकार मोदी जी ने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयत्नशील होने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई अफ्रीकन यूनियन विल नाउ बी पार्ट ऑफ द G20, विच इज़ फैंटास्टिक बाय द वे, कि जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड इन G20 नेशंस. आज तक कभी भी किसी ने ऐसा नहीं कहा था. और तो और छोड़िए, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट लूला हैं, where the presidentship will now be passed on to Brazil, by the way. He himself has appreciated Mr. Modi so much, which is absolutely fantastic. Look at the Italian Prime Minister. She has come over here and what has she said? She says Modi is the most loved Prime Minister in the world. That's what she says. So all these things are great. But point is this, sir. ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के प्रभाव की बात हो गई, और जो प्रभाव है इट इज़ मैग्निफिसेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जो भारत की खुद की सड़क पर समस्याएं हैं उस पर ये लोग कोशिश, सब लोग जो हैं, आपके विरोधी जितने भी हैं, वो उस पर फोकस करेंगे, इंक्लूडिंग पेट्रोल और डीजल की प्राइस, इंक्लूडिंग LPG गैस सिलेंडर की प्राइस, इंक्लूडिंग अब तो खैर टमाटर और प्याज की कीमत बहुत कम हो गई है, बल्कि टमाटर के जितने भी किसान हैं तो टमाटर सड़क पर फेंक रहे हैं. ये हो गया है, 2 रुपये भी नहीं बच रहे बेचारों के, ये हालत हो गई है. तो उसका आप मुकाबला किस प्रकार करेंगे अंबेडकर साहब, ये बताएं जरा. जी, जो आदमी वर्ल्ड विजन रखता है वो आदमी अपने कंट्री के लिए विजन नहीं रख सकता, ऐसा मानने का कोई कारण मुझे नहीं लगता है. तो इसके भी समस्याओं के हल सब उनके पास है. जैसा कि सिलेंडर का प्राइस उन्होंने जो रक्षाबंधन का मौका पकड़ के उन्होंने 200 रुपये से कम किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये ज़्यादा हो रहा है प्राइस, अपने बहनों को ये सहन नहीं हो रहा है. तो उनके पास पूरी एम्पैथी है, उनके पास पूरी स्टडी है, उनके पास पूरा ब्यौरा तैयार है, और कैसे स्टेप से जाना ये भी उनको मालूम है. तो मुझे नहीं लगता कि वो बेदखल कर रहे भारत के कोई किसी प्रॉब्लम को. अंबेडकर साहब, मेरा ये सवाल नहीं था. मेरा ये है कि जैसे 200 रुपये कम किए गए, विच इज़ वंडरफुल, लेकिन सर क्या, चलिए बागी साहब छोड़ो, बागी साहब, मैं राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनको भी तो मैचिंग इतनी सब्सिडी देनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, अब 200 रुपये सेंटर ने कम कर दिया, तो यहाँ पे आप 200 रुपये और कम कर दीजिए ना, तो 400 रुपये कम हो जाएगा. इसी तरीके से बाकी शासन में भी बड़े आराम से सब्सिडी दे सकते हैं. और अगर मान लीजिए जो गैर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं वो अगर नहीं देते, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है कि भाई देखिए हमने तो कम कर दिया, इन लोगों ने नहीं किया. आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए सर?
आपसे पूछ सर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जब हमारी भाजपा और सेना की शिवसेना की शिंदे साहब के सेना की गवर्नमेंट आ गई तो इमीडिएटली पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर गए। और कर्नाटक में क्या हो गया, कर्नाटक में उल्टा हो गया। सर मैं उन्होंने एलपीजी की बात कर रहा हूँ, एलपीजी गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ सर। सर मैं सर 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 सवाल से भटके ना, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आपसे खुद से व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूँ। जज मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सेंटर ने अपना काम कर दिया है, नाउ इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। आप भी सब्सिडी दो ना, क्या मतलब इसमें समस्या क्या है सर? आपको क्या लगता है? विनायक अंबेडकर साहब आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सर ये एक इकोनॉमिक क्वेश्चन है। इसके बहुत एंगल्स है, एक ही सीधा एंगल नहीं है कि उसने कम किया मेरे को कम करना चाहिए। हर राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कम करना चाहिए। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, मेरी कोई दो राय नहीं है। Fantastic. I agree with you. But by the और way, ये Mr. Yogi Adityanath has already announced that he is going to give bigger subsidy in Uttar Pradesh. आज अनाउंसमेंट हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब एंड बिफोर आई फॉरगेट, प्रदीप जी, आई नो यू वांट टू कम इन, No, it's okay. बट बिफोर आई फॉरगेट, देयर इज वन अदर थिंग व्हिच पीपल मस्ट कम टू नो। एंड बाय द वे, आई हैव बीन रिसीविंग अंबेडकर साहब, आपको भी शायद खुशी होगी ये जान करके कि प्रदीप जी और मुझे बहुत अच्छे अच्छे नाम बुलाए जा रहे हैं कि हम लोग क्या भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, संघी हैं, पता नहीं क्या कुछ हैं वगैरह वगैरह। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। जो गोदी में जो लिया। चीज़ देश के हित में है वो प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसकी हम लोग यहाँ प्रशंसा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट से, उसके बाद वहाँ से रेल नेटवर्क शुरू होगा, ईरान से टर्की, टर्की से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ से सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया सीधा यूरोप, और मे बी इवन फ्रॉम इस्तांबुल टू यूरोप। दैट रूट स्टिल हैज टू बी वर्कड आउट। बट द अदर साइड सर, दूसरी तरफ मत भूलिएगा, दिल्ली लखनऊ, लखनऊ कैलकाटा, कैलकाटा से ढाका, ढाका से रंगून, रंगून से बैंकॉक बाय रोड। दैट थिंग इज गोइंग टू बी रेडी बाय डिसंबर। वो जो Yes. 816 लेन हाईवे है, दैट इज गोइंग टू बी रेडी बाय डिसंबर। दैट वाज मिस्टर नितिन गडकरी's pet project and it is going to be ready by December, which is absolutely fantastic. So let's not Yes. forget that, both on the eastern side and on the western side, which is the reason why, by the way, Mr. Modi went and attended the ASEAN conference. ASEAN conference उन्होंने attend करी, फिर वापस आए G20 के लिए, which is absolutely fantastic, really and truly wonderful. इसमें आप ये बताएं, आपसे जो सवाल है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो आप लोग हैं, जैसे कार्यकर्ता हैं, सब लोग हैं, उनकी क्या मंशा है ये सब देख के, वो जरा बताएं जरा। हमारी मंशा एक ही है कि 2024 में मोदी जी फिर से पूर्ण बहुमत से और पहले से ज़्यादा सीट लेके चुन के आए। और मोदी जी जब विचार करते हैं तो उन्होंने जो विचार किया है वो 2050 का विचार किया है। उन्होंने जो भी प्लान्स बनाए, वो आवास योजना का रहो, वो रोड बिल्डिंग का रहो, वो एयरपोर्ट बिल्डिंग का रहो, वो इकोनॉमी को डेवलप करने का रहो, ये सब प्लान्स उन्होंने 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के हर टप्पे का विचार करके उन्होंने किया है। उनका जो शेड्यूल है वो 2050 तक है। तो हमारी सबकी मंशा है कि उनको पूरा बहुमत के साथ वो फिर से चुन के आए। और जो एक इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने एक स्पीड दिया है आज, वो स्पीड आगे चलते रहे और पूरे इंडिया की जग में एक थर्ड स्टेज की अर्थव्यवस्था करके बने जल्दी से जल्दी, यही हमारी मंशा है। अंबेडकर साहब, जयराम रमेश कल उन्होंने कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया, बोले कि मोदी जी पे आप विश्वास नहीं कर सकते, मोदी जी प्रॉमिसेस डजंट डिलीवर। इसे 2014 2018 G20 जो समिट हुआ था, मोदी जी प्रॉमिस दैट जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है और देश से भाग जाता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। He said eliminating the havens of economic of offenders, extradite economic offenders। और वही उनका जो कहना है कि प्रॉब्ली ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, तो he says India has not been able to get them back। तो he said मोदी जी has actually failed in the promise। मनी लॉन्ड्रिंग है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, देश से जो भाग गए। हाउ डू यू सी दैट जयराम रमेश का एक्यूजेशन? ये आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2016 में फर्जिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ये पहले लेके आए। उसके बाद में उन्होंने ये जो तीनों नाम आपने लिए, नीरव मोदी वगैरह, उनके जो इंडियन असेट्स है वो पूरे सीज कर दिए ईडी की तरफ से, डीआरआई की तरफ से, और उनका लिलाव करके उनको बैंक के हवाले कर दिए। उनका लिलाव हो गया। और मेरे जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आज तक कम से कम
17,000 करोड़ रुपीस इन असेट्स के सेल के बैंक लोन में भरवा दिए गए, स्टेट बैंक ने भरवा दिए हैं। और उसका एक पूरा प्रोसीजर मोदी जी ने सेट किया है। अभी आपने जो सवाल पूछा कि ये इंडिया में क्यों नहीं आए, अभी जिस कंट्री में वो रह रही है, आपने शायद सुना रहेगा कि जो एक नीरव मोदी है या चोकसी है, वो कैसे उस देश में मैनिपुलेट करते उनके लॉज को, ये हमने देखा है। मगर इंडिया की तरफ से पूरी सख्त कार्रवाई करने का प्रयत्न हरदम किया जाता है। वो एक जो चोकसी था, वो एक आइलैंड कंट्री में गया था, उसको पकड़ने के लिए इंडिया की पूरी टीम गई थी। मगर उस आइलैंड कंट्री का जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने उसको चोकसी को सेफगार्ड किया। उन्होंने शायद कुछ रिश्वत लिया रहेगा, वो मालूम नहीं। मगर फिर भी मोदी जी के तरफ से कुछ कमी है क्या, तो 100% कोई कमी नहीं है। फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट आप देख सकते हैं, उसमें स्ट्रिक्टेस्ट प्रोविजन है, और वो प्रोविजन अप्लाई करके इन तीनों फिजिटिव जो है, उससे भी ज़्यादा 7 या 8 फिजिटिव जो भी है, उनके पूरे इंडियन एसेट्स इन्होंने सीज करके उसका नीलामी करके बैंकों का जो रिकवरी है वो किया है। लेकिन साहब विजय माल्या साहब तो अभी तक ये कहते हैं कि देखो लॉस जो हुआ है किंगफिशर के अंदर, वो कोई इसमें कोई स्कैम थोड़ी है, ये तो लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस है। और यहाँ पर बाकी देशों से भी प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर कि साहब जो बिजनेस लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गलत निर्णय की वजह से या अर्थव्यवस्था में जो वातावरण है उसकी वजह से अगर बिजनेस बंद हो जाता है, दैट इज नॉट मीन इट्स अ स्कैम। तो आपको लगता नहीं है वी मस्ट रीलुक एट द लॉ कि हर बिजनेस अगर कोई बंद हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्कैम हुआ है। देखो, जो लोन सीकर है, जो कोई आदमी कर्जा मांगता है, उसको अपना मॉडल खुद डिजाइन करना है और अपने मॉडल की गारंटी उसने खुद लेनी है। बैंक ये तो गारंटी नहीं दे सकती कि उसका मॉडल सक्सेस होगा, ये बैंक का काम नहीं है, वो बिजनेसमैन का काम है। तो वो यदि बिजनेसमैन फेल हो गया, तो उसने कम से कम भाग के नहीं जाना था, इंडिया में रहना था। और जैसा उसको जमता था कि जैसा, तो उसने ये चीज जब भी इंडिया में बैठ के की होती थी, तो उसको कोई वैलिडिटी थी। वो एक तो खुद भाग गए, और भाग जाने के बाद में यदि वो बिजनेस अच्छी तरह से नहीं कर सके, यदि वो लॉस में है, तो उनकी लाइफस्टाइल में ऐसा कोई दिखता नहीं है कि वो लॉस में है करके। आज भी वो ऐशो आरामी की जिंदगी जी रहे। लेकिन तो ये लेकिन दो अंबेडकर साहब, ये तीनों चारों लोग जिनका नाम अभी प्रदीप जी ने लिया, चौकसी साहब हो गए, मेहुल चौकसी साहब, और क्या नीरव मोदी साहब हो गए, आदरणीय डॉक्टर विजय माल्या साहब हो गए, ये सब लोग भागे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में। ये ऐसा कैसे हो गया? देखो, कोई आदमी के ऊपर जो लीगल एक्शन है, उसके कोई स्टेजेस रहते हैं। जी। वो स्टेजेस, कोई स्टेज चूक गई क्या, ये अभी तक कोई भी स्टेज ऐसी प्रूव नहीं हो गया कि वो चूक गई करके। किसी को डिले हो गया, कोई जो ऐसा है कि गवर्नमेंट मशीनरी में भी कोई 100% कोई ईमानदार आदमी है ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो कोई गवर्नमेंट मशीनरी में से ही उसको हेल्प हो गया, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। करेक्ट, विजय माल्या जी को तो हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें ही वॉज वार्नड अर्लियर। ये भी कहा जा रहा है कि उनको पहले ही मतलब चेतावनी दे दी गई थी कि भाई तुम अरेस्ट होने वाले हो, जरा निकल लो, जितना जल्दी जल्दी निकल सकते हो। तो अभी इनफैक्ट ही अभी यूज्ड हिज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ही वाज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जी बोलिए सर प्लीज। अभी मैं एक बात के ऊपर आपका ध्यान चाहता हूँ कि बोफोर्स का जो कल्प्रिट था क्वाट्रोची, जी। उसको इंडिया के बाहर जाने के लिए किसने मदद किया? तो सोनिया गांधी कांग्रेस जी। ने, नो नो डाउट अबाउट इट। सोनिया गांधी जी ने मदद जी किया, खुद इन्वॉल्व थी जी। उसमें। सो तो ऐसा सर, तो सो इज मोदी द जी ने केस विद किया द ना। चेयरमैन ऑफ यूनियन कार्बाइड। यूनियन करेक्ट। कार्बाइड के जो चेयरमैन थे, जिनकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, अरे मुख्यमंत्री वहां के अर्जुन सिंह जी उनको अपने प्राइवेट प्लेन में लेकर के गए दिल्ली, करेक्ट। और दिल्ली से न्यूयॉर्क। इट इज मिस्टर राजीव गांधी हु प्रोवाइडेड हिम प्रोटेक्शन कि आप जाइए वहां पर। मतलब ये तो सर, ये तो आपके मेरा सामने है, सबके सामने है, तो उसमें कोई दो राय तो नहीं है। मेरा कहना यही है कि कांग्रेस वालों को नैतिक अधिकार नहीं है ऐसी बातें करने का। वो खाली अपना जो लेकिन सर हमें तो फ्रस्ट्रेशन है, है, कांग्रेस की बात फ्रस्ट्रेशन है, वो छोड़िए, निकाले। इसलिए कांग्रेस को हराया गया और आपको जितवाया गया ना सर। आज तो आप है ना, आज तो हाँ, मोदी जी, मगर सर मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा हो जाए, नहीं लोगों को नहीं इसलिए जरा तकलीफ होती है कि ये नहीं क्यों हो रहा है। नहीं, मगर मेरे को बोलिए ना, उन्होंने फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट लाया क्या? उनके
फ्यूजिटिव के इंडियन असेट्स उन्होंने सीज किए क्या? ये नहीं हुआ ना उनके कार्यकाल में, वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ ना। वॉरेन एंडरसन के तो इंडियन एसेट्स थे ही नहीं, उसकी जो कंपनी थी फाइनली आई थिंक इट वाज बॉट बाय द महिंद्रास बिल्कुल। एंड इट वाज बॉट बाय समबडी एल्स. But in any event, that's a very long story. But all the same, sir, congratulations. No, I want to ask about Uddhav Thackeray. Yes, please go ahead. Yes, sir. Please go ahead. उद्धव ठाकरे जी कहना है कि जो अभद्र भाषा फडणवीस जी के बोलना किस प्रकार से लोगों के सामने, और उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि तानाशाही के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, मित्र परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ेंगे, लड़ने वाले हैं. हाउ डू यू सी दैट रिमार्क, अंबेडकर साहब? नाउ does it suit how the BJP takes this kind of view? एक तो अभद्र भाषा जिस प्रकार से कहा देव फडणवीस जी के बारे में, और दूसरा कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, मित्रवाद के खिलाफ लड़ेंगे, तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे. हाउ डू यू सी दैट, अंबेडकर साहब? जो उद्धव जी ठाकरे मोदी जी का फोटो लगा के चुन के आए हैं, उनके सब जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, वो अभी ये टाइप की भाषा यूज करते हैं, ये बहुत निंदनीय है. और इसको मैं फ्रस्ट्रेशन के सिवा और कोई नहीं बात इसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है. वो एक ट्रैप में फंस गए हैं और अभी उनको पश्चाताप भी हुआ, तो वो जो रिटर्न का रास्ता था वो अभी बंद हो गया है, ये उनको समझ में आया है. और वो एक फ्रस्ट्रेटेड, मतलब एक जैसा पिंजरे में पकड़ा हुआ चूहा रहता है ना, वो जैसे तड़पड़ करता है, वैसे वो एक पिंजरे में ट्रैप में पकड़े हुए हैं. और वो ट्रैप के लिए उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ है कि वो पूरा फ्रस्ट्रेशन देवेंद्र जी के ऊपर निकाल रहे. तो उनको सीरियसली लेने वाली जनता नहीं है इधर. उनको उद्धव जी जब जितना गाली देंगे उतना उनका जो एक क्रेडिबिलिटी है वो हर्ट हो रहा है, ये उनको ध्यान में नहीं आ रहा है. और उद्धव जी का दूसरा विशेषता ऐसा है कि एक 4 लोगों के सिवा, उनके 4 निकटवर्ती लोगों के सिवा वो दूसरा किसी का सुनते नहीं है. तो जो उनको सलाह देने वाले लोग हैं, उनको जैसी सलाह देते हैं या जैसे शब्द सुझाते हैं वैसे वो शब्द यूज करते हैं. वैसे खुद का कोई उनका अंदरूनी जो है तो उनका खाली अहम है, बाकी कुछ उनके पास नहीं है. तो आपने उद्धव ठाकरे को चूहा बुला ही दिया, चलिए कोई बात नहीं, वो पिंजरे में बंद चूहा, पिंजरे में पकड़ा हुआ चूहा है वो, खाली चूहा भी नहीं है, मुक्त नहीं है वो. चलिए, बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा बोला था जी, और उसके बाद औरंगजेब का क्या हुआ मालूम है आपको? सोच लीजिए जरा सर, उद्धव ठाकरे को चूहा बनाने के पहले. सिर्फ बोल रहा हूं सर ऐसा है, मैंने बोला कि जो उनकी स्थिति है उसका वर्णन करने मैं समझ गया सर मैं समझ गया. मुझे अधिकार है आपकी टांग खींचने का कभी कभी, ऐसी बात नहीं. चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर. And by the way, congratulations once again for a fantastic G20 summit. Yes. Envy of the world, admiration of the world. जिस तरीके से जो consensus हुआ दिल्ली declaration में, it is unbelievable. It is magnificent. Great work by our diplomats. Absolutely fantastic. And in fact, as now it has come out, हमारे जो लोग काम कर रहे थे उस पर, उन्होंने हर एक मिशन हेड को ये बोला कि किसी को अगर कोई तकलीफ हो, ये मोदी जी का नंबर है, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं. It was absolutely fantastic. For the Chinese and the Russians also to appreciate it, really fantastic. Thank you so much, sir. Namaskar. Namaste. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind. That was nice. So, Mr. Uddhav Thackeray is a trapped rat. मतलब उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो चूहा है, पिंजरे में पकड़ा हुआ चूहा. उद्धव ठाकरे जी शायद अभद्र भाषा, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी को तरबूज बोले कि मैं नहीं बोलता, आप बोलते हो तरबूज. I mean, you have some political decency while addressing your. He does not like eating watermelons. उनको तरबूज खाना पसंद नहीं. चलिए, let's ask Mr.